Hi everyone, myself Divya Tamrakar. Today I am going to teach you chapter number 14, Baswa's form. Baswa is a little boy as like you, and he helped her father in their field. Her father sowed onion crops in their field and Baswa helped them in farming. So let's start. I am Baswa. Here that particular boy told us their story. I am Baswa. My father is a farmer. We live in Belwanika village in Karnataka. It is the month of July like every year. Appa, my father, is preparing the field to sow the onion crop. There are so many things to be done at this time. To help him, I too go to field with Appa. In the last few days, Appa has been using the khunti, an iron rod, to dig the soil, loosen it and make it soft. ये जुलाई का मंथ है जब बासवा हमें ये स्टोरी बता रहा है. वो कर्नाटका के बेलवानिका विलेज में रहता है. उस वक्त उसके अप्पा मतलब उसके फादर, बासवा के फादर, अपनी जो उनका फील्ड था, उनका जो खेत था, उसको वो प्रिपेयर कर रहे थे ओनियन क्रॉप के लिए. जो प्याज हम घर पे खाते हैं नॉर्मली, उसी की खेती करने के लिए वो अपने खेत को रेडी कर रहे थे. खेती करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है. तो जो बासवा था वो, उसकी मम्मी, सब कोई उसके अप्पा की हेल्प करने गए थे. जब जुलाई का मंथ स्टार्ट हो रहा था तो कुछ दिन जब बचे थे तो उसके अप्पा ने खुंटी यूज़ की थी ज़मीन को खोदने के लिए. खुंटी एक टाइप का आयरन रॉड होता है जिससे कि मिट्टी को खोदा जाता है और मिट्टी को ढीली की जाती है ताकि उसमें जब बीज डालें तो वो अच्छे से गए. खुंटी को आपके लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे. खुंटी को डिफरेंट लैंग्वेज में अलग अलग से कहा जाता है, वर्ड्स यूज़ किया जाता है. तो बेसिकली आप उसे क्या कहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे. ये जो पिक्चर्स में बासवा के फादर के हाथ में जो चीज़ है इसे ही खुंटी कहा जाता है. तो आप इसे क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नाउ इट्स टाइम टू सोइंग द सीड्स. अब जब उसके फादर ने सॉइल को लूज कर दिया था यूजिंग विथ खुंटी, so it's now time to sowing the seeds. Sowings mean, what is the meaning of this word sowing? You also tell me this in the comment section, okay? So this year also my father will sow onion seed in the field. The bullock will pull the courage and Appa will walk behind them. इस साल भी उसके फादर ऑनियन सीड्स को ही उगाने वाले थे फील्ड पे. उन्होंने ब्लॉक्स लिया और उसमें कुरीज का यूज़ किया. दैट थिंग इज़ कुरीज, ओके. ये जो ब्लॉक से ऐड है उसको कुरीज कहा जाता है. एंड उसके अप्पा उसके पीछे पीछे फिर चलने लगे एंड स्प्रिंकलिंग द सीड्स. I would also like to do this just like my Appa, but Appa said that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. This is not so easy to do. He says that I may drop too many seeds at one place. I must wait till I am a little older to be able to do this properly.
सो ये वर्क उसके अप्पा कर रहे थे बासवा के, लेकिन बासवा भी ये चीज़ें करना चाहता था जैसे उसके अप्पा कर रहे थे। बट उसके अप्पा ने मना किया कि तुम थोड़ी सी लापरवाही करोगे और एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स डाल दोगे, जो कि फार्मिंग के लिए गलत है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे सीड्स का जो अमाउंट होता है वो भी सेम होना चाहिए। ज़्यादा अमाउंट डाल देने से वो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। सो उसके अप्पा ने कहा कि तुम्हें ये चीज़ करने के लिए थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए ताकि तुम ये चीज़ें अच्छे से कर सको। नाउ कुछ दिन बीत गए। आफ्टर सम few months later, the sprouts appear. It is now 20 days. It's 20 days after the seeds were sown. The onion plants have started to sprout. Along with the onion plants, weeds also come up. So what is weeds? I already told you meaning of weeds in the online classes, so you have to tell me the meaning of weeds, which is shown or grow along with the different types of crops when we sowing it. So you have to tell me meaning of weed in the comment section. So जब ओनियन प्लांट्स उगे तो उसके साथ बहुत सारे वीड्स भी उग गए थे। Weeds grow in field and garden without being planted. Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizer. If there are too many weeds, the onion plants will not be healthy. Amma, uncle and we all help Appa to take out the weeds. वीड्स के उग जाने से जो मेन क्रॉप होता है उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वाटर नहीं मिलता, और जितने भी फर्टिलाइज़र या मैन्योर का यूज़ किया जाता है वो प्रॉपर मेन प्लांट को नहीं मिलता। इस वजह से वीड को रिमूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जितने ज़्यादा वीड होंगे, मेन प्लांट, मेन क्रॉप जो होगा वो उतना ही ज़्यादा अनहेल्दी होगा, डैमेज हो जाएगा। सो अम्मा, बासवा की अम्मा, उसके अंकल मीन्स उनके चाचा और बासवा अपने अप्पा की हेल्प कर रहे थे उस फील्ड से वीड्स को हटाने के लिए। नाउ ग्रोइंग प्लांट्स। अभी क्या हुआ था, हमने सबसे पहले सीड्स उसने डाले थे, अप्पा के फादर ने पहले सॉइल लूज़ किया, फिर सीड्स डाले थे, फिर उसमें स्प्राउट्स अपीयर हुए थे। अब प्लांट्स बड़े हो गए हैं। I am happy to see the plants growing. They are tall enough to reach my knees. The leaves have started turning yellow and drying up. This means that the onion are ready to be taken out. जैसे हम जानते हैं कि जब पेड़ से चीज़ें पक जाती हैं तो वो पत्ते पीले हो जाते हैं। सो वैसे ही जैसे ही ओनियन प्लांट्स रेडी हो गए थे, वहाँ उसमें से ओनियन को निकालने के लिए उनके जो लीव्स है वो येलो हो गए थे। इसका मतलब ये था दैट ओनियन आर रेडी टू बी टेकन आउट। सो हियर बासवा टोल्ड अस, आई मे नॉट गो टू स्कूल फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज सिंस आई विल ऑल्सो नीड टू हेल्प। अब जो बासवा है वो कुछ दिन स्कूल नहीं जाएगा बिकॉज he will also need to help her father. Everyone at home will have to work to take the onions out. It is important that this should be done at the right time. If we are late, the onion will rot in the ground itself. All our hard work will be wasted. ये जो वर्क होता है सॉइल से ओनियन निकालने का, इसमें पूरी फैमिली अप्पा की हेल्प करती है, क्योंकि अगर इसे सही टाइम पर निकाला नहीं गया तो ये पूरे वेस्ट हो जाएंगे। इतना जो हार्ड वर्क उन्होंने इतने मंथ तक किया वो वेस्ट हो जाएगा। सो इसे सही टाइम पे निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली
हेल्प करती है. नाउ स्टूडेंट, हियर इज अ क्वेश्चन. This is the question. Baswa helped his father in the field. Do you help the elder in your family in their work? What do you help with? जैसे बासवा अपनी फैमिली की हेल्प करता है, वैसे क्या तुम अपनी फैमिली की हेल्प करते हो? सो यहाँ का जो आंसर रहेगा, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ, because it is the question for you that did you help your family and what do you help with. क्या आप अपनी फैमिली की मदद करते हो, और करते हो तो क्या मदद करते हो? सो यू हैव टू फिल दिस बाय योर सेल्फ, पेज नंबर 115, एंड ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन. डू यू एन्जॉय डूइंग दैट वर्क? अब जो प्रॉपर वर्क अपने घर पे हेल्प करते हो, जिस भी वर्क में, क्या उस वर्क को करते हुए वक्त आप एंजॉय करते हो? नेक्स्ट, द ओनियन क्रॉप. आफ्टर रिमूव द ओनियन फ्रॉम द field, they have to cut the onion leaves which is grow out part of the onion. So everyone at home is happy because now their hard works pay them. उन्होंने जो इतनी मेहनत की थी, अब उनका उसे फल मिलेगा. That's why everyone at home is happy. This time too onions are big and healthy. Amma and auntie used the edge to cut the dried leaves from the top of the onion. The edge is sharp and you have to be careful not to cut your fingers. Appa and uncle fill the sacks with onions. Appa will take them in a truck to sell in a big market. Now they are doing so hard work to grow the onion, and after some times they taken out the onion from the soil, and this time onion are big and healthy as comparison to previous year. That's why at Baswa's home everyone is so happy. And Amma and auntie इलिच का यूज़ करके जो ओनियंस के ऊपर एक्स्ट्रा ड्राइड लीव्स थी, जब उन्होंने उसको टेक आउट किया था तो जो कुछ रह गया था उसे भी वो अलग कर रही थी. द एलिज इज शार्प, इट्स टू शार्प. You also use elij in your home, and in the different state, different districts, they are using different words to call elij. And what do you call in your home, at your home, elij? What did you call elij at your home? आप उसे अपने घर पे क्या बोलते हैं? सो ये भी आप कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे. So the edge is very sharp. You have to be careful not to cut your fingers. In your home, your mother also use edge to cut the vegetables, and it is really very sharp. So Appa and uncle fill the sacks with onions. Sacks means जो बोरा होता है ना, जिसमें सारे सामान भरे जाते हैं, उसे कहते हैं sacks. SACKS. So इसका मीनिंग हुआ बोरा. जो बोरा आता है ना, जिसमें गेहूँ, चावल, धान भरते हैं, कुछ वैसे ही टाइप का होता है जिसमें ओनियन को भरा जाता है. सो अप्पा ने इस सबको एक ट्रक पे रखा क्योंकि वो उसे मार्केट ले जा रहे थे बेचने के लिए. सो स्टूडेंट, हियर योर चैप्टर नंबर 14, द बासवास फार्म्स, is completed. I'll explain already this chapter in online class, but some students are absent, that's why I'll make this video for you. And many questions I asked here, you have to give all the answers. If you watch the video, you have to press like button and give all the answers in comment section with your name. Okay, you have to write down your name with the answers. Okay, so here we will complete it. Chapter number 14, Baswa's farm. So subscribe my channel for new videos. Thanks for watching.